تو 2 دن سے عمر سیریز آ نہیں رہی تھی، اس کے لیے سو رہی، کیونکہ یہ جو انو ہے اس کی کمر میں تھوڑا پین ہے، اس لیے یہ لمبی بھی ہے، اس لیے ہم نہیں دیکھ پائے تھے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے کو ایک بار بتانا ہے، کیونکہ اب جو ہے حضرت عمر جو ہے وہ اب بن چکے ہیں خلیفہ. ٹھیک ہے، وہ خلیفہ بن چکے ہیں. تو میرے کو بتانا تھا خالد بن ولید ہے، ان کے اور ان کے بیچ میں تھوڑا کچھ تھا کیا اس سمے؟ ٹھیک ہے، ابھی اس میں تو ہم کو تھوڑا بہت ویسے ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں، لیکن جو حضرت عمر ہے ان کا تھوڑا ویسا ہم کو دکھا ہے کہ وہ سخت ہے ان کے پرتی. ٹھیک ہے، خالد بن ولید کے پرتی تھوڑے سخت ہے ان کا رویہ. ٹھیک ہے، تو وہ سب کے پرتی سخت ہے یا صرف ان کے پرتی؟ ہم کو ایسا لگ رہا ہے، تو وہ تھوڑا بتانا. ٹھیک ہے، کیونکہ بعد میں آگے چل کے جیسے ہم نے سنا ہے بیچ میں محمد صاحب سے بھی سنا ہے، محمد وہ انجینئر صاحب سے بھی ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے آگے چل کے جو ہے وہ ان کو ہٹا بھی دیا تھا، خالد ولید کو ہٹا بھی دیا تھا اس پوسٹ سے. ٹھیک ہے، تو میرے کو تھوڑا بتانا اس بارے میں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ. فرسٹ دن ہے نا آج، پہلا دن ہے ان کا خلیفہ بننے کے بعد کا. ما كان الله ليراني وأرى نفسي أهلا لمجلس أبي. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. یہ سمبل ہے کسی چیز کا؟ اب بولے گے فرسٹ بار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں جو اس نے خود کے لیے بیان کی ہیں، اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا سلام. اللہ کی رحمت ہو ابو بکر صدیق پر، جنہوں نے یہ امانت لوگوں تک پہنچائی، اپنی امت کی اصلاح کی، اور بغیر کسی الزام کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ایسی مثال قائم کی جس کی پیروی ہمارے لیے مشکل ہے. جب بھی ہم نے نیک کاموں میں ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، خود کو ہمیشہ ان سے پیچھے ہی پایا. تو کوئی کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہی ہے، جو کچھ بھی وہ دیتا ہے یا جو کچھ بھی وہ لیتا ہے. اے لوگو، میں آپ میں سے ہی ایک ہوں. واو. میں رسول اللہ کے خلیفہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی یہ ذمہ داری چاہتا تھا. یا اللہ، اگر میں زیادہ سخت ہوں تو میری سختی کو کم کر دے. یا اللہ، اگر میں کمزور ہوں تو مجھے قوت دے. اللہ آپ کے ذریعے میری آزمائش چاہتا ہے، میرے ذریعے آپ کی. میرے 2 ساتھیوں کے گزرنے کے بعد بھی مجھے زندہ رکھا. مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ لوگ میرے رویے سے خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمر ہم پر سختی کرتا تھا جب رسول اللہ اور ابو بکر ہمارے بیچ موجود تھے. ثم اشتد وہ علينا آئے نہیں تھے بیچ میں جو 2 وأبو لوگ آئے بكر تھے؟ والينا دونه. تو اب کیا ہوگا جب سارے معاملات ہی میرے ہاتھ میں ہیں؟
जिसने भी ये कहा बिल्कुल सच कहा। रसूल अल्लाह के साथ में उनका एक खादिम था। नरमी और हमदर्दी में उनका कोई सानी ना था। और जैसा अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया, मोमिनों पर निहायत रहम करने वाले और मेहरबान। मैं उनके लिए एक मयान से निकली हुई तलवार था, जो वो चाहते तो मयान में रख सकते थे या इस्तेमाल कर सकते थे। फिर अबू बकर मुसलमानों के खलीफा बने। आप तो जानते ही हैं कि वो एक बहुत नरम दिल, रहीम और करीम थे। मैं उनका भी खादिम था और मेरा सख्त रवैया उनकी नरम दिली के साथ था, बिल्कुल उसी तलवार की तरह जिसे वो चाहते तो इस्तेमाल करते या फिर मयान में ही रख सकते थे। मगर अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है लोगों। तो अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरी सख्ती 2 गुना हो गई है। लेकिन ये सिर्फ जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ होगी। जहां तक अच्छे साबित कदम और दीनदारों की बात है, तो मैं उनके साथ इससे भी ज्यादा नरम हूं जितना वो आपस में नरम है। वल्लाही जो किसी के हकूक छीनेगा या नाइंसाफी करेगा, मैं उसे तब तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि उसका चेहरा जमीन पे न रगड़ दूं। उसके बाद मैं अपना चेहरा जमीन पर रगड़ दूंगा उन लोगों के लिए जो इंसाफ पसंद और कानून पसंद है। मैं आपसे कुछ वादा करना चाहता हूं जो पूरे ना होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों के हिस्से से कभी कुछ न लूंगा। जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, सिवाय उसके जिस पर मेरा हक है। मैं वादा करता हूं कि आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपके सारे मसलों को सुलझाऊंगा और आप पर जो भी कोई खतरा होगा वो पहले मुझसे होकर गुजरेगा। और अगर आप फौज के साथ घर से दूर हैं तो मैं तुम्हारे अहलो अयाल की देखभाल करूंगा एक बाप की तरह। जहां तक बैतुल माल की बात है तो उसकी निगरानी में कोई कमी न रहेगी। अगर मेरे पास काफी है तो मैं बैतुल माल से कुछ न लूंगा, और जब मेरे पास कुछ न हो तो मैं सिर्फ उतना ही लूंगा जितना जायज है। अल्लाह से डरते रहो अल्लाह के बंदो, और तुम्हारे मामलात देखने में मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, और मेरे लिए भी मेरी मदद करो। अगर मैं सही करूं तो मेरा साथ दो, और गलत करूं तो मुझे रोक दो, और तुम्हारे मामलातों में मुझे ईमानदारी से सलाह दो। आजकल कोई ऐसा लीडर नहीं होगा है ना, सब अपनी बारे में सोचते हैं। मैं क्या कह रहा हूं। उठो अल-मुथन्ना, ये तुम्हारे भाई हैं अल-मुथन्ना इब्न हारिता अल-शैबानी। इराक के इनके कारनामे सब जानते हैं। मुसलमान वहां कम तादाद में और कमजोर हो चुके हैं। उन्हें डर है कि इराक में हमने जो पाया फारस उसे वापस पाने की कोशिश करेगा। अबू बकर ने अपनी वफात से पहले मुझसे कहा कि मेरे वफात के बाद अगली सुबह या अगली शाम होने से पहले मैं लोगों को अल-मुथन्ना के लश्कर में शामिल होने की दावत दूं। तो वक्त ना गवाओ और जिहाद में शामिल हो जाओ, क्योंकि ये जिहाद है जिहाद, और इसमें हिस्सा लो। मना कर रहे क्या? कोई भी आगे क्यों नहीं आया, ये बात मुझे समझ नहीं आई। ये लोग फारस का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें इल्म है कि फारस बहुत ताकतवर है। हमारे ज्यादातर सिपाही शाम में हैं। अगर वो लोग भी अल-मुथन्ना से जाकर मिल जाएं, तब भी इनकी तादाद काफी नहीं, और फारस से जंग में अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि इन्हें अल-मुथन्ना की बहादुरी का इल्म है, फिर भी ये लोग इन्हें इतना नहीं जानते जितना खालिद इब्न अल-वलीद को। जबकि अल-मुथन्ना ना मुहाजिरीन से हैं ना अल-अंसार, और ये ज्यादा रसूलुल्लाह की सोहबत में भी नहीं रहे। और वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि इराक में खालिद की जगह कोई और नहीं ले सकता। क्या इन लोगों को इतना भी इल्म नहीं कि ये सब कुछ अल्लाह करता है? ना खालिद इब्न अल-वलीद ना अल-खत्ताब। सब्र रखें,
हम इस मामले में इनसे दोबारा मशवरा करेंगे। मुझे लगता है कि वो लोग भी इस पर मशवरा कर रहे होंगे जो आज उन्होंने आपसे सुना। अपनी शरायत लोगों पर जबरदस्ती न डालो, बल्कि अल्लाह के रास्ते पर उन्हें खुद आगे आने दो। हजरत अली, अल्लाह हमें कभी आपकी राय से महरूम न रखे। अबुल हसन उमर इब्न अल खत्ताब की तरफ से अबू उबैदा इब्न आमिर इब्न अल जर्राह को अल्लाह आपको अपने अमान में रखे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक खलीफतुर रसूल अल्लाह अब हमारे बीच नहीं रहे। सब कुछ अल्लाह का ही है और एक दिन अल्लाह के पास ही ये वापस क्या लौटना है। इतिहास लिख रहे गए ये जो बैठ के? अल्लाह की मर्जी थी कि मैं उनके बाद खलीफा बनूं। तारीख लिख रहे हैं। मैं आपको शाम में मुसलमानों का अमीर लेटर मुकर्रर लिख रहे हैं, करता हूं। लेटर। इसलिए रोम के साथ जंग में आप अपने साथियों के साथ मशवरा लें। आप ये जान लें कि मैं खालिद इब्न अल वलीद को किसी गलती या खता की वजह से नहीं हटा रहा हूं, बल्कि आप उन्हें अपना दायां बाजू बना लें, जो भी आपको बेहतर लगे। पहले दिन ही इस बात का ध्यान रखें कि मुसलमानों पर कोई आंच ना आए। अल्लाह आपको मेरे जरिए आजमा रहा है और मुझे आपके जरिए। वस्सलाम अलैकुम। अब हटा दिया उनको। वो खोइस्तानी की वीडियो में हमने देखा था ना कि जल्दी आओ साद। अब जब अल्लाह ने मुझे इस जगह पहुंचाया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं उठाऊंगा। मैं आपको इसमें शरीक करूंगा ताकि अल्लाह के सामने आप मेरे गवाह रहो। मैं कहूंगा कि हुक्म जारी करने से पहले मैंने आपसे मशवरा किया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मौजूद थे तो उन पर वही का सिलसिला जारी था जिसमें गलती की कोई गुंजाइश न थी। फिर भी अल्लाह ने अपने साथियों से उन्हें मशवरा लेने का हुक्म दिया, तो हम क्यों ना करें। ओ बिल्कुल। जब अल्लाह अपने रसूल को मशवरे का हुक्म दे सकता है, जबकि हम में से कोई भी रसूलुल्लाह की तरह हिदायत याफ्ता नहीं है। हम तो आम लोगों की तरह हैं जो अपनी राय कायम करेंगे। सही भी हो सकती है और गलत भी। जब एक इंसान अपनी राय को तरजीह देता है तो वो गलती करता है बिल्कुल और चारों तरफ से परेशानियों में घिर बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तब वो और मुसलमानों मैं की ही सही जमात हूँ। कमजोर पड़ जाती है। मगर जब एक जमात अपनी राय कायम करती है और बाद में पता चलता है कि वो गलत है तो गलतियों को सुधारना आसान हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि ये पूरी जमात का फैसला है। इसमें किसी एक को जिम्मेदार नहीं ये ठहराया जा वैसा ही है सकता। लव मैरिज या तब अरेंज जमात मैरिज और ना। इसके अमीर मजबूत होंगे और बगैर शूरा के लिए गए फैसलों का नतीजा ज्यादातर सही नहीं होता। एक इंसान का फैसला कच्चे धागे की तरह होता है। दो लोगों की राय भी आपस में उलझ कर रह जाती है, जबकि तीन लोगों की राय एक मजबूत रस्सी की तरह होती है। वाओ, क्या इसके example साथ ही दिया। मैं अपनी हिकमत का आगाज करूंगा। ये आपका हक है और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप सच को जानते हैं तो उसे मत छुपाना। अब मैं अल-मुतन्ना से शुरू करता हूं। मैं लगातार 3 दिन से लोगों से इसरार कर रहा हूं अबू बकर की वफात के बाद, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे सलाह दो ये लोगों। वो डरते हैं क्योंकि उनकी तादाद कम है और फारस के खिलाफ ये तादाद कुछ खास ना कर सकेगी। इसके अलावा जो लोग इस्लाम से फिर चुके हैं उनसे अबू बकर ने मदद लेने से इनकार कर दिया था। उनकी तादाद ज्यादा है और उनमें अरब के कुछ बेहतरीन लड़ाके भी शामिल हैं, जैसे तुलहा अल-असदी और अम्र इब्न मादकरिब। उन्होंने तौबा कर ली है और शिद्दत से मुसलमानों की जमात में शामिल होना चाहते हैं और फौज में भी। अगर हमारे लोगों को पता चलेगा कि वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो उनका नजरिया भी बदल जाएगा। यकीनन
अल्लाह भी यही चाहता था कि यह दिन अरब से शुरू हो, और इसके लिए जरूरी है कि अरबी जमात एक साथ इकट्ठा हो। वक्त आ चुका है जो लोग पहले फिर चुके थे और बाद में तौबा कर ली, उनको मुस्लिम जमात में शामिल कर लेना चाहिए, ताकि पूरा अरब एक इंसान की तरह तबलीग और रिसाला शुरू कर दे। फारस और रोम में होने वाले जुल्म और सितम का खात्मा हो। ओ, बता दिया गया इनको, अब बताएंगे। हमारे लोग खाली बैठे उकता गए हैं अबू सुलेमान, क्योंकि बहुत वक्त हो चला है और शायद अबू बकर को भी हमारी खबर का इंतजार होगा। सब्र रखो, सब्र इनको रखो कोई या पता नहीं अब्दुल्ला। है। बिल्ली का सब्र और बहुत शेर दूर की है छलांग ये। इंशाल्लाह। आप तो जानते ही हैं कि हमने अपने दस्तों को भेजा है ये जानने के लिए कि दुश्मन किस तरीके से हमला करेगा। रोमी फौजों की जंगी तरतीब बिल्कुल अलग है जिससे हम नावाकिफ हैं, इसीलिए हमें अपनी फौजों को नई तरतीब से तैनात करना होगा। मैं इसी बारे में सोच रहा था और जल्दी ही हम कोई नया तरीका निकाल लेंगे इंशाल्लाह। सब्र और उम्मीद, हमारा कल अब करीब ही है। कैसे हैं आप अबा सुफियान? रोमियो से लड़ने के लिए बेसब्र हूं। जब मैं अपने चारों तरफ मुस्लिम फौजों को देखता हूं, शाम के इन मजबूत इलाकों में, मुझे याद है जब हम यहाँ कुरैश कबीलों के साथ तिजारत के लिए आया करते थे और अपने आप को यहाँ गैर महफूज पाते थे। कोई हालचाल भी ना पूछता था। हम उनके सरदारों को तोहफे दिया करते थे, उनकी शान में गाने गाया करते थे, और उनकी नजरों में हमारी औकात गिरे हुए इंसानों जैसी थी। हम में से सबसे शान शौकत वाला उनके सबसे निचले दर्जे के लोगों के बराबर हुआ करता था। और फिर जब हम लोग वापस अपने लोगों के पास लौटते तो उनकी शान शौकत के कसीदे पढ़ा करते थे। हमने हमेशा लोगों को अल्लाह के रसूल के पास जाने से रोका और इसके लिए हमेशा उनसे लड़ते, और वो हर बार हमें हक की दावत देते और फरमाते, मेरी इताअत करो और एक उम्मत बनकर आगे बढ़ो, तब फारस और रोम जैसे मुल्क भी तुम्हारी विरासत में होंगे। और हम कहते कि ये कैसे हो सकता है, हमारा और उनका भला क्या मुकाबला। और आज हम यहाँ हैं जहाँ रोम हमसे लड़ने में घबराता है और हम उनका शिद्दत से इंतजार बहुत कर बड़ी रहे बात है हैं। ये, बहुत बड़ी बात। ला वल्लाही अबू सुफियान ने बिल्कुल सच ही जैसे कहा, हमने जैसे मैं वीडियो महसूस नहीं देखी करता कल, हूं। मैं भी यही जब अरब महसूस में करता कुरान आई, हूं। कभी तो ऐसा लगता है चिंगारी जैसे लगी मैं ख्वाब कुरान देख से। रहा हूं। क्या यूनाइट ये हुए सब कुछ सब। चंद सालों में ही हो गया? और आज मैं शाम में मुसलमान फौज के साथ हूं और अबू सुलेमान हमारे अमीर हैं। कुछ ही अरसा हुआ होगा जब मैं सफवान और अबू यजीज के साथ था और फतेह मक्का के रोज सबसे ज्यादा मुखालिफत की। हमने हथियारों से अबू सुलेमान का सामना किया। अगर अल्लाह हम पर रहम न करता तो उस दिन हम मुशरिक ही मर जाते, याद कर उसी रहे खालिद हैं। की तलवार से जिसके इशारे पर हम आज जंग कर रहे हैं। से बहुत बड़ी हमारा बात इरादा है। और मजबूत हो जाता है कि अल्लाह हमें फतह देगा और शाम हमारी झोली में आ गिरेगा इंशाअल्लाह। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो भी बताया उसे अमली जामा पहनाया जा चुका है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। सुनो अल-मुथन्ना, बेहतर होगा कि तुम अपने सिपाहियों के साथ इराक वापस लौट जाओ और अबू उबैदा का इंतजार करना जो आपके साथ शामिल होंगे और फौज लेकर। हुक्म की इताअत होगी या अमीरुल मोमिनीन। क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन? ये कहना बंद कर दो वरना। ना वल्लाही, ना तो अब ये रुकेंगे ना हम। हमने इस बारे में मशवरा किया और आपको ऐसे बुलाना सही नहीं लगा। खलीफतुल रसूल अल्लाह। वल्लाही आप हमारे अमीर हैं और मुसलमान जमात के मोमिनीन, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन। उम्मीद है आप इस पर राजी होंगे। इनको गुस्सा आता रहता है हर बात। वो कह रहे भाई मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो हुई नहीं वो। आप लोग जानते हो मैंने आपको यहाँ क्यों जमा किया है? वो बस सोच रहे कि लोग मुझे ना फॉलो करने लग जाए, तुम समझ में रहे हो से ना? शायद कुछ सोच रहे होंगे कि तुम्हारे अब्बा अब अमीरुल मोमिनीन हैं ओ बच्चों को, और तुम उनके बच्चे को हो। बुला रहे हैं। तो तुम में से अगर कोई भी तिजारत के लिए जाता है, लोग तुम्हें तरजीह देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम्हारे अब्बा आपके दादा के ऊंट चराया करते थे वाह, और आपके दादा का बर्ताव बुरा ही नहीं बहुत बुरा। बल्कि ज्यादती वाला था।
आपके अब्बा अपनी खालाओं के लिए लकड़ियां लेकर आते थे और उनके हवाले कर दिया करते थे, कुछ मुट्ठी भर खजूर या किशमिश के लिए। हमारा कबीला आदि गरीबी दिखा कुरैशियों में रहे हैं से अपने कुछ बच्चों खास को, नहीं गरीबी। था, और हमारा मर्तबा कुछ कबीलों जैसे अब्द मनाफ, मखजूम, साम और जुम्मा से कमतर था। अल्लाह ने हमें इस्लाम में इज्जत दी, खुद को उसके हवाले करके। लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे जैसे एक बाज गोश्त के टुकड़े को देखता है। जरा भी तुम भटके वो तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। अगर खुद को बचा लिया तो बच जाओगे। अगर मैं किसी चीज को हराम करने का हुक्म जारी करता हूं तो सबसे पहले तुम उससे बचोगे। वल्लाही जान लो, जिस काम से मैंने बचने का हुक्म दिया है, अगर वो काम तुमने किया तो इस रिश्ते की वजह से मैं तुम्हारी सजा दोगुनी कर दूंगा। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे अब्बा मुस्लिम जमात के अमीर हैं, ये कभी ना सोचना, ताकि तुम में और दूसरों में कोई फर्क ना रहे। समझ गए मैंने क्या कहा? वाह, सलाम भाई, क्या सोच लगता है। है वक्त करीब ही है। उन्होंने कहा कोई और गलती करेगा ना अगर जंग में इससे ठीक बुरा है, कुछ भी वो नहीं तो लगता कि हम उसका इंतजार उससे करते ज्यादा रहें। बस तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। समझ, मेरे बेटे हो, तुमने भाई गलती कर सलमा, दी। हमने सगे भाइयों से बढ़कर एक दूसरे का साथ दिया है। वक्त चाहे अच्छा रहा हो या बुरा, हमने कभी साथ नहीं छोड़ा। हम दोनों एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। उसके बाद हम इस्लाम में भाई बने और हमने जो भी किया वो साथ किया। वो जमाना चला गया जब हम दोनों की टांगें बंधी होती थी और लोग हमसे बुरा बर्ताव करते थे। और आज हम इस मुल्क में हैं और हमारा भाई खालिद लोगों का अमीर है और हमारा भाई इकरिमा उनके नीचे अमीर है। उस जमाने में दोनों ने ही हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं वो हमें साथ लाया। मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होना चाहता हूं और अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं कि मेरा दफन तुम्हारे हाथों हो। वल्लाही मैं भी यही चाहता हूं। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तुम्हें महफूज रखे और तुम मुझे दफनाओ और मेरी वसीयत का जिम्मा भी आप ही लें। अगर तुम ही न रहे तो मैं उसका क्या करूंगा सलमा? मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि जिस तरह उसने दुनिया में हम दोनों भाइयों को साथ रखा है उसी तरह आखिरत में भी हम दोनों को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ये रूमी खुली जगह में जमा हो चुके हैं और इनके बीच से गुजरने का रास्ता इंतहाई तंग है। इनसे सामना करने के दो ही तरीके हैं। इन्होंने खुद को दरिया और मगरबी नहर के दरमियान रखा हुआ है, जहां पर इनका दाहिना लश्कर तैनात है और वहां मशरिक की वादी की तरफ उनका बाहिना लश्कर तैनात है। उनके पीछे वादी होने की वजह से उनके बाही तरफ भागने का कोई रास्ता नहीं है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उन्हें वहां रोकना चाहे तो रोक सकते हैं और अगर वो भागना चाहते हैं तो हम उन्हें जाने देंगे, जैसा भी वक्त के हिसाब से सही होगा। सही कहा। बहुत ही कम होता है कि ऐसी फौजों को कोई फायदा मिलता है। सच कहा। यह उनके हारने की पहली वजह होगी इंशाअल्लाह। ये जगह इन्होंने जंग में ना तजुर्बे की वजह से नहीं चुनी है, बल्कि इसलिए चुनी है कि उनके सिपाही यहां से भाग ना सके और वो चाहते हैं कि उनके सिपाही यहीं टिके रहें, भाग ना पाए, ताकि उनकी फौज यहां रुकी रहे। ये उनकी आधी हार हो चुकी है इंशाअल्लाह। तोप नहीं आई थी है ना उस समय, किसी के पास तोप नहीं है।
या माशर المسلمین, ये रूमी हमारी तरफ तकब्बुर से बढ़ रहे हैं. यह अल्लाह के दिनों में से एक दिन है जिसका अंदाजा पहले से ही था, और इनके एतमाद पर चोट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि शाम के दरवाजे हमारे लिए ना खुल जाएं. तो कसम खाओ हम तब तक लड़ेंगे जब तक शहादत नहीं मिल जाती या फतह. हक बस अब पूरा होने ही वाला है. ए मोमिनो, अल्लाह के लिए लड़ो और वो तुम्हारी मदद करेगा जिससे यकीनन फतह मिलेगी. अल्लाह का वादा सच्चा है. या माशरल मुस्लिमीन, सब्र रखो. सब्र ही तुम्हें कुफ्फार से बचाएगा, तुम्हें सवाब दिलाएगा और जिल्लत से तुम्हें बचाएगा. अपनी जगह पर डटे रहो और जंग शुरू ना करना. खामोश रहो और अपने दिल और दिमाग को जोश से भर लो. मेरे हुक्म का इंतजार करना इंशाअल्लाह. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ओ अब आया लेटर. ओ लड़ाई के बीच में आया है वो लेटर. ओ मत अभी मत बताना. अरे अभी नहीं बताना ही. وإنا إليه راجعون. ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. अभी नहीं. तुम सब देख ही रहे हो, अपने तक ही रखना. शुक्र है. इसके बारे में किसी को पता न चले. बिल्कुल. उसमें लिखा है ना वो खलीफा, डेथ हो गई खलीफा की. अभी तक इनको पता नहीं था ये बात. वापस जा रहे हैं. वापस जा रहे हैं. ए मुसलमानों, मैसेज देने वाले थे ना, वो तो गए. अपनी नजरों को नीचा रखो. उनकी तादाद देखकर मत घबराना. हमारे इरादे उनसे ज्यादा मजबूत हैं. अगर हमने शिद्दत के साथ उन पर हमला किया तो तुम उन्हें चारों तरफ भागते हुए देखोगी. ये क्या, लड़ाई नहीं हुई अभी? सुनो ख्वातीन, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहीं रुके रहना, और अगर मुसलमानों को भागते देखो तो उन पर पत्थर मारो. इन रोमियों की तादाद मुसलमानों से बहुत ज्यादा है. नहीं, मुसलमानों की तादाद रोमियों से ज्यादा है. फौज की फतह देखो, शिकस्त नहीं. तादाद का कोई मतलब नहीं होता.
ان کے پاس بالکل جو لوہے کی شیلڈ ہیں، پروپر ویپن ہے ان کے پاس. واہ، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. آج تک میں رسول اللہ کے خلاف لڑا، الحمدللہ اگر آج میں شہید بھی ہو جاؤں تو کوئی غم نہیں. يا ابن أخي وأنا ابن أخي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ہار گئے کیا؟ أين عز الإسلام والأمهات والزوجات؟ حتى الله رجل أن يفر عن كريمته. لا تتراجعوا. الله أكبر. عودوا إلى القتال. کیا نام ہے ان کا؟ نام بتانا. اچھا یہ وہی ہے، ان کی وائف ہے، یہ انہی کی. درمیانی فوج کو لڑنے کا حکم دو اور اکرمہ سے کہو کہ وہ داہنی طرف سے آئے. ابو عبیدہ اور القعقاع نے رومیوں کو بیچ میں ہی روک کے رکھا ہے. جاؤ.
او دوسری طرف سے آ گئے اور صبر رکھو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ صبر رکھنے والوں کے ساتھ ہے، انہیں بھاگنے مت دینا۔ او یہ وہی ہے یہ جو بھی دکھائے تھے۔ اب خالد جو ہے اتر چکے گھوڑے سے، اب مچے گی تباہی۔ وہ ہوتا ہے نا لیڈر کو مارو سب سے پہلے، تب حوصلہ ویسے ہی دوسروں کا ٹوٹ جائے گا۔ او مائی گاڈ، ارے فزیک بھی تو اتنے لمبے چوڑے ہیں۔ کتنے 6.5 فٹ کے تو ہو گئے شاید اس ٹائم پہ۔ اب بھاگنے لگ گئے سب، لیڈر ہی مر گیا اب۔ يأمر خالد إذا رأيت فرسان الروم يطلبون الفرار فافسح لهم. اذهبوا اذهبوا. واو بیسٹ ہے، بیسٹ ایپیسوڈ تھا یہ، ہے نا؟ اس میں تو پتہ ہے، تو یہ بیسٹ ایپیسوڈ تھا، پتہ ہی نہیں چلا اس میں تو کب ٹائم نکل گیا، کیونکہ اتنی ساری چیزیں اور تھی بیچ میں جب سٹارٹنگ میں جو ان کی تھوڑی بے چینی تھی کہ میں زیادہ سخت تو نہیں ہو جاؤں، پہلے وہ اللہ سے بول رہا ہے
کہ اللہ میرے کو میرے اگر میں زیادہ سخت ہو جاؤں تو اب میری سختی کم کرنا. پھر اس کے بعد بول رہے اب میں ڈبل سخت ہوں گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ چٹھی بھیجی. ٹھیک ہے. اچھی بات یہ انہوں نے چٹھی اس سمے نہیں پڑھی ہے نا, نہیں تو ویسے ہی تھوڑا حوصلہ ان کا وہ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو کتنی ساری چیزیں ہوئی, اور میں تو ویٹ کر رہا ہوں جب ان کو پتہ چلے گا جو چٹھی میں جو لکھا ہے, تب میرے کو دیکھنا ان کا ایکسپریشن کیسے ہوگا, کیسا فیل ہوئے گا. ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں, اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ ہم کو بھی موٹیویشن ملتی رہے. ٹھیک ہے. آگے آگے ویڈیو بنانے کی. ٹھیک ہے. تو کر دینا. ٹھیک ہے. بائے.